بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جنت کے پتے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح حیا کو ایک ڈولی نامی خواجہ سرا تنگ کرتا ہے یا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حیا کو اپنے ہی مسئلے کی وجہ سے اسے پریشانی ہوتی ہے اور وہ اس پریشانی کی وجہ سے ڈولی اور پنکی دونوں خواجہ سرا سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ان خواجہ سرا سے کس طرح نپٹتی ہے اور اسے رونگ نمبر یعنی کہ میجر احمد کیا کہہ کر اسے مزید ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان احمد تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روحیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا۔ بہت سی آوازیں اس پہ اچھالی گئیں۔ وہاں سب موجود تھے، طیب فرقان، داور بھائی، روحیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بے حیا۔ اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان حیا نہیں ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، خون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک تھا، کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ وہ جسٹ ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا، فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلہ پہ پہنچنے میں۔ پھر اس نے فون کون سے لگایا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شور، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اسے لگا کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے سیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درخت تھا۔ وہ ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی۔ لمبے بال پیچھے کمر پر پڑ رہے تھے۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن، اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے کی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا گیا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی ادھر ادھر گردن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار وہ میں دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے مقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے ذرا غور سے سکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فرسٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ وہ بامشکل خاکہ بنا پا رہی تھی۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا کہ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ ٹیک لگائے کر کرسی پہ بیٹھا، کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب تھا، شاید دیکھ کر اس کو کور کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے حصے پہ ایک بدنما سا کالک یعنی آدھا چہرہ جلس گیا ہو۔ دفتر میں وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔
यकदम हया के सामने मेज़ पे रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स इसे कॉल कर रहा था? इसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत सा लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़ कर कान पे रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आहदे जुल्से और ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी, इसको घुटन महसूस होने लगी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला हुआ है, मुझे क्लिक करना है। आपकी वीडियो सफ़ा हंसी से यूं मिट जाएंगी जैसे कभी बनी ही ना गई हो। दीवार के पार इस धुंधले मंजर ने ऑफिसर के सामने एक लैपटॉप खुला पड़ा देखा तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए, मैं क्लिप कर दूँ? वो रिपोर्ट समझी वो दर्ज हो गई। इसे लगा वो मुस्कुरा दिया। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझे? फ़ोन को जकड़ा। इसका फ़ोन हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, बामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया, थैंक यू मेजर अहमद। इसका गला रंधने लगा था। एक बात पूछूं जी, क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैर दर पैर सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारी डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें या इंटरनेट पे मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इस बात को गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दरश्ती से बोली और चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक है, ठीक कहा आपने। इसने एक गहरी सांस ली। एक बात पूछिए। अब इसकी आवाज़ में एक अजनबियत दर आई। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नत कहाँ देखी है मेजर अहमद? इसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तब ही तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो इसे थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। इसके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई और ठहर सी गई। धुंधली दीवार भी अभी तक इसके सामने थी। कौन था इस पार? आप सुन रही हैं? जी, वो चौंक कर बोली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने लगी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल। वो उड़ते उड़ते वापस बैठ गई। जी पूछिए, आप मुझसे शादी करेंगी? एक जोर का धचका लगा और गूंज से फटी फटी निगाहों से दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। हैर तो शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। चबा कर एक लफ्ज़ बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़ह सा चौंका। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में ला इल्म है। वो निकाह जो मेरे कज़न जहान सिकंदर से मेरा बचपन में पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानती हूँ, आपकी फुप्पो का ख़ानदान जो जिल्लत तो शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख ही ना कर पाए। आखिर कारनामा भी तो इतना शर्मनाक अंजाम दिया था। इनका इंतज़ार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट का ही एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई ये बात करने की? अरे बाहर में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पे चलवा दें, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूल चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटक वो दूसरी जानिब पटक कर दरवाज़े की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोल कर वो एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ जो इसे अंदर बिठा कर गया था। गोया इसे फ़ौरन इशारा कर दिया। मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। हया के लिए बेहद तलख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के इस पार वो आधे स्याह चेहरे वाला शख्स जो मेज़ पे झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। इसे लगा इसने इसकी मेज़ पे कुछ सुर्ख स्याह की झलक देखी थी, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद इसका वहम था। जिस लम्हे में से पुरानी मर्सिडीज़ के पीछे से बैठी तो खुले दरवाजे से इसकी
इस सिपाही ने झुककर एक सूरह गुलाबों का बुके से थमाया, गो कि इसके साथ कोई खतरा था। वो फूल इन सफ़ेद गुलाबों से कितने मुख्तलिफ थे। फिर भी इसे यकीन नहीं हुआ वो गुमनाम खतूत बेचने वाला मेजर अहमद ही था, और वो इसे पहले ही जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पे दे मारो। इसने बुके सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाज़ा खटाक से बंद किया। मर्सरीज सन से आगे बढ़ गई। हया हया शाम में इरम भागती हुई खुशी से अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो इस वेबसाइट से रिमूव हो गई है, मगर कैसे हुआ सब? ये इस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई, जैसे शायद कुछ हुआ ही ना हो। हमारी तुर्की की फ़्लाइट कब है पता नहीं। मुझे पासपोर्ट तो मिले, पर वीज़ा भी मिलेगा। इसको इरम की मौजूदगी से खौफत होने लगी थी। कुछ इसके तासरात ही ज़ाहिर थे। इरम जल्द ही उठ खड़ी हो गई। फिर वो इस सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, इसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे बात करना, और उसकी अजीब फ़लसफ़ायाना बातें, जन्नत वगैरह का तज़किरा, पास बर्स करना, और फिर शादी का सवाल। और खुदाया कैसा अजीब आदमी था वो। और एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलम तेश में होने के बायस सवाल नहीं कर सकी थी, आपकी फुप्पो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब कहीं शायद इसका रुख कभी इधर का रुख ना करे। कारनामा ख्याल इतना शर्मनाक अंजाम दिया था। क्यों कही थी इसने बात? कैसी ज़िल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा? फुप्पो का ख़ानदान वाक़तन पलट कर नहीं आया था, तो क्या इसकी वजह इनकी अपने मुल्क और ख़ानदान से बेजारी थी? यह जैसा कि वो कयास करी थी, बल्कि कोई और थी, कोई ज़िल्लत अमेज़ काम जो इन्होंने सर अंजाम दिया था। इन्होंने, किसने? फुप्पो ने, इनके शौहर ने, या जहान सिकंदर ने? क्या था भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती, ना ही इसको दोबारा फ़ोन आया था। फिर वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी इसने भेजे थे। इसे स्पॉन्ज जाने का कैसे इल्म हुआ? इसने कॉल टाइप कर रहा था जब ज़ारा को इसने बताया। मगर वो गुलदस्ता जो किचन टेबल पर रखा था, तो क्या इनके घर भी दाखिल हो सकता था? इसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम ने दरवाज़ा अंदर से खोला। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। इसने तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहनकर बाहर आई। अब्बा, इसने अब उंगली की पूंछ से इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। इसने दरवाज़ा तो खोला, वो खुलता चला गया। सामने बेड पे हया सुलेमान बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्किर। साथ एक सोफे पे फातिमा बेगम थी। इनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थीं। आपने बुलाया अब्बा? हाँ, आओ बैठो बेटा। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी। सुलेमान साहब चलने में खामोश है, शायद वो कोई तमहीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना तमहीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फ़ैसला किया है। इसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा से दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए समीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई इसके मुंह पे चाबक दे मारता, तब भी शायद इसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशी की अलहदगी हो जाएगी। वो जितने बेजार वो लोग हैं, यकीनन इन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। इसने शौकी नगाहों से माँ को देखा। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। इनके रवैये साफ अंदाज़ा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? वो बहुत देर बाद बोली। इसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा और कोई हल नहीं है? हया, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और मैं कभी भी नहीं ये कहता, लेकिन किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते। अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं ज़रूर इसको ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश करने दें, प्लीज़ अब्बा। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर इसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए, तो मैं आपके फैसले के साथ हूँ। मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। वो उठी और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई।